Hello friends. So in the last lecture we just complete the regulation of kidney functioning and the maturation. Okay, how the extra materials are comes out from body. Now today we start the new topic, means the role of other organs in excretion. Now as you know kidney is the main or chief organ, excretory organ of your body, but there are few organs which also doing the same process, or they also secrete some the byproducts of body. So we see the step by step. The first organ is lungs. Sir, my question is, sir, the lungs are the excretory organs? What do you say, sir? So the lungs are excretory organs because they release the carbon dioxide. So carbon dioxide is not useful gas for us after the metabolism. So carbon dioxide is released by lungs, and the amount of carbon dioxide is almost 18 liter per day. So एक दिन में 18 liter of carbon dioxide which we released. Okay. Now after CO2 there is the second organ which is the largest organ of your body, liver. Okay. Now liver is the main organ for blood purification. Liver क्या करता है? They doing the purification of blood. So they purify the blood, they detoxify the blood, and after this metabolic processes, they they release the steroid, they release the degraded hormones, then bilirubin, biliverdin, and salts, and they secrete this all materials as a bile pigment, or sorry, as a bile juice. Okay, into the duodenum or intestine. Okay, so they secrete the bile juice, and the component of bile juice is, so they have the bile juice have the bilirubin, biliverdin, degraded hormones, steroids, and the drugs which you take for your pain relief or whatever, antibiotics, जिसका degradation liver में हुआ है वो सभी drugs, and these all materials are directly secreted into the duodenum, which some of the parts are helpful in digestion, and the rest of the materials are excreted out through anus as a fecal matter. Okay, or with a fecal matter. Now liver के बाद the skin. So both this sweat gland and sebaceous gland, both are the gland of skin, means both are present in the lower or derma of skin, dermal skin के ऊपर है. So सबसे पहले है sweat gland secrete the sweat. ओके, स्वेट एज यू नो कि हमें ऐसी कंडीशन में गर्मी में के जो कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्वेटनिंग होती है, सो ड्यूरिंग द स्वेटनिंग वाटर इज रिलीज्ड, NaCl, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, बट देयर इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्वेट. So some amount of urea, NaCl, water and lactic acid is secreted out as a form of sweat. Okay, so sweat gland is also a secretory gland. Now sebaceous gland, what is the function of the function of sebaceous gland is कि sebaceous gland वो moisturize करता है आपकी skin को. Okay, so sebaceous gland is important for moisturizing of your skin, lubrication of your skin, because they secrete the wax, steroid and all, etc, sterol and all. So the name of secretion is sebum. Sebum is the secretion जिसके अंदर wax and steroid and all, sterol and वो सब है. Okay, so these are the excretion: sebum, sweat, CO2 and bile pigment, or you can sorry bile juice. Okay, so these are the organs which are also doing the excretory function. Okay, so lungs, kidney, skin, जिसमें sweat gland and sebaceous gland. Okay, now we will see the diseases related to excretion, related to kidney. When the kidney is not functioning, then what happens? So the first disease is uremia.
Uremia is the first disease. So the malfunctioning of kidney, due to the malfunctioning of kidney, there is the replacement of kidney, or sorry, there is the way how the kidneys work. As you know कि उसमें ultrafiltration, then reabsorption, selection होता है, selective absorption होता है, secretion होता है, ये सब होता है किडनी के अंदर. और ये processes जब अच्छी तरह या फिर स्मूथली फंक्शन नहीं करती, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ किडनी, और अगर किडनी नहीं है देन क्या होता है, यू मस्ट गो टू डायलिसिस. आपको कहाँ पे जाना पड़ता है, डायलिसिस के लिए. और इन द डायलिसिस क्या करना पड़ता है कि जो काम किडनी करता है वही काम डायलाइजर करता है. क्या करता है, टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड. सो पहले तो ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है. सो वी थ्रू ब्लड थ्रू फ्रॉम द बॉडी एंड इनटू द डायलाइजर. सो एक ट्यूब के थ्रू डायलाइजर के अंदर ब्लड को डाला जाता है एंड पुटिंग इनटू द एंटीकोएगुलेंट इनटू द ब्लड, बिकॉज जैसे ही ब्लड एटमॉस्फेयर एयर में आएगा इट बिकम कोएगुलेटेड. सो वो कोएगुलेट ना हो, दैट्स व्हाई एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन हम ऐड करते हैं एंड देन ब्लड को डाला जाता है डायलाइजर में, जिसके अंदर ट्यूब होती है, कॉइल ट्यूब, जिसको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब. नाउ सेलोफेन ट्यूब हैव माइन्यूट पोर्स कि जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एब्जॉर्ब हो सके. नाउ अराउंड द सेलोफेन ट्यूब देयर इज अ डायलाइजिंग फ्लूइड. ओके, सॉरी, डायलाइजिंग फ्लूइड इज देयर, एंड डायलाइजिंग फ्लूइड वो सेम कॉन्सेंट्रेशन है या सेम है ब्लड प्लाज्मा या ब्लड के जैसा, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमें एब्जॉर्ब करना है उसको डायलाइजर फ्लूइड में नहीं डालना है. सो सेलोफेन ट्यूब से नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायलाइजर फ्लूइड में आ जाएंगे. देन आफ्टर दिस डायलिसिस करने के बाद जो भी ट्यूब के थ्रू ब्लड वापस बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है आफ्टर एडिंग दी एंटी हिपेरिन, क्योंकि हमने एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन ऐड किया था, तो एंटी हिपेरिन ऐड करके हम वापस वही ब्लड को बॉडी में डालते हैं. ओके, सो दिस इज द डायलिसिस which is very expensive and उसमें काफी खर्चा हो जाता है. ओके, सो यूरेमिया इज देयर. देन यूरेमिया के बाद है किडनी फेलियर है. नाउ इन द किडनी फेलियर क्या होता है कि सेम माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की, जिसकी वजह से किडनी या फिर नेफ्रॉन है जो फंक्शनिंग नहीं रहते ड्यू टू दी एरर ऑफ सम प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में कोई एरर है, सो मेनी एरर्स आर देयर. सो ड्यू टू दी माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी क्या करना पड़ता है कि किडनी फेल हो जाती है, किडनी इज नॉट एबल टू प्योरीफाई द ब्लड. सो द नेसेसरी इज कि किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है फ्रॉम द डोनर. सो वी यूज द डोनर किडनी एंड द बॉडी इज नॉट एडेप्टेड फॉर द फॉरेन मटेरियल्स और फॉरेन पार्ट किडनी, फॉरेन ऑर्गन्स अदर जो दूसरे ऑर्गन्स है उसको बॉडी एडेप्ट नहीं करता या फिर एक्सेप्ट नहीं करता. सो बॉडी को एक्सेप्टेबल बनाया जाता है फॉर द डोनर किडनी एंड किडनी डोनेट करके उसको अलाउ किया जाता है टू फिल्टर द ऑल ब्लड. ओके, नाउ सेकेंड थिंग कि उसमें क्या होता है कि ये ड्यू टू मेडिसिन ये सब करना पड़ता है बिकॉज एंड किडनी जो है, डोनर जो है वो आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए या फिर बहुत ही नज़दीक जो रिलेशन है वो वही होना चाहिए, पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ आफ्टर दिस किडनी फेलियर द नेक्स्ट डिजीज इज कि द किडनी स्टोन. नाउ किडनी स्टोन में क्या होता है कि इन दी नेफ्रॉन और रिनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर कि जिसके अंदर ऑक्सलेट सॉल्ट एक्यूमुलेट होता है. ड्यू टू द ऑक्सलेट सॉल्ट्स दे फॉर्म अ क्रिस्टलाइन, दे क्रिएट क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड इट इज नोन एज किडनी स्टोन. ओके, सो किडनी स्टोन है उसको मेडिसिन या फिर सर्जरी से रिमूव किया जाता है. Now glomerulonephritis the next disease मैं लिख नहीं रहा. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर स्वॉलन हो जाता है. सो स्वॉलन ऑफ ग्लोमेरुलस.
सो ग्लोमेरुलस का स्वॉलन की वजह से वो फंक्शनिंग नहीं कर पाता. सो दैट इज दी ऑल्सो प्रॉब्लम. ओके, सो दीज आर द डिजीजेज रिलेटेड टू किडनी फंक्शनिंग. ओके, सो यहाँ तक रखते हैं, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, बाय.